بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اذان کا جواب دیتے ہوئے جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، یا میں روحانی فٹنس بتا رہا ہوں، جو شخص دل ہی دل میں پڑھے گا، اور میں نے اس مسئلے پہ تحقیق کی ہے، آپ بھی کر لیجئے گا، جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں اذان کا جواب ان کے لیے نہیں ہے۔ اذان ہے ہی ان کے لیے جو باہر والے ہیں، جو پہلے سے یہاں آیا بیٹھے ہیں، غور سے سمجھ رہے ہیں، جو پہلے سے مسجد میں آیا بیٹھے ہیں، اگر وہ اذان کا جواب نہیں دے رہا تو گناہگار نہیں ہوگا، اگر دے دے تو ثواب ہے۔ جیسے ہم پہلے سے ہی آئے بیٹھے ہیں نماز کے لیے، جو شخص اذان کے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے گا دل ہی دل میں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جتنے دفعہ بھی، اس کا ایک فائدہ سنیے۔ ابھی اذان میں مجھے یاد آیا تو میں نے کہا آپ کو ضرور عرض کر دوں، اس کا فائدہ سنیے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ اس کو اس کے پڑھنے سے 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ 3 نعمتیں اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی نسلوں میں نماز اور سجدے نہیں چھینے گا۔ میں نے پچھلے درس میں ایک بات عرض کی تھی، بڑی خطرناک بات ہے، بعض اوقات ناراض ہو کے رزق نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ بعض اوقات ناراض ہو کے رزق نہیں چھینتا، روٹی نہیں چھینتا، کیا چھین لیتا ہے؟ سجدے چھین لیتا ہے، اپنی ذات کا قرب چھین لیتا ہے، تسبیح، ذکر، اعمال یہ چھین لیتا ہے۔ جو شخص حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا جواب میں، 3 نعمتیں اس کو ملیں گی، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے اللہ اس کی نسلوں سے سجدے نہیں چھینے گا، اللہ اس کی نسلوں کو سجدے دے گا، اس کی نسلوں میں عبادت دے گا، اس کی نسلوں میں اپنی بندگی دے گا، اپنے نام کی محبت دے گا۔ دوسرا، جو شخص یہ پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ آخری وقت میں شیطان کے گمراہ ہونے سے اس کو بچائے گا، کہ آخری وقت میں شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے کلمہ چھن جائے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ آخری وہ ہستی تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی ہستی کے انکار کرنے والوں کا ساری زندگی ان کا اصلاح کی، ساری زندگی کہ رب ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب کا وجود نہیں ہے، یہ کائنات ایسے ہی اس طرح ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، رب ہے۔ ساری زندگی رب کے وجود کا انکار کرنے والوں کی اصلاح کی اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ آخری وقت ہے اور علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بیمار ہیں۔ شیطان ان کے ایک دوست کا روپ دھار کے دروازہ کھٹکھٹایا اور بیٹا باہر گیا کہ میں اپنے والد کی آپ کی طبیعت پوچھنے آیا۔ انہیں کہا ان کی تو نزا کی حالت ہے، آخری وقت ہے، کہ یہی وقت تو دوست کے حال حوال پوچھنے کا ہے، ان پہ نزا کے دورے پڑ رہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ جاتے ہی حال حوال پوچھا اور وہ بحث چھیڑ دی کہ اللہ نہیں ہے، اور ان کی رگ پھڑکی کہ نہیں اللہ ہے، یہ سب کچھ ایسے نہیں بن گیا۔ وہ کہتے نہیں ہے۔ ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں اور اس 100 دلیلوں کو دنیا کا بڑے سے بڑا آج تک ایک دلیل بھی نہیں توڑ سکا تھا۔ اس شیطان نے وہ دلیل توڑ دی، پھر انہوں نے دوسری دلیل دی، وہ دلیل توڑ دی، پھر انہوں نے تیسری دلیل دی، وہ دلیل توڑ دی۔ 100 دلیلیں تھیں، اب 99 دلیلیں اس شیطان نے توڑ دی ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ایک دلیل باقی ہے۔ اگر یہ بھی ٹوٹتی ہے تو یہ بھی کہتے ہیں ہاں رب نہیں ہے، اور یہی آخری لمحہ ہے زندگی بھر کا کھٹیا وٹیا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن۔
जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। तो वही फरमा रहे थे मुर्शिद, अगर मुर्शिद से सच्चा राब्ता है, उसमें शक और बदगुमानी नहीं है, उसमें एतमाद है। वही फरमा रहे थे, वजू का पानी लेके जोर से छींटा मारा, अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, अल्लाह ने पर्दे हटा दिए। याद रखिएगा, याद रखिएगा। मुझे बाबुल उलूम के ताजदार की बात याद आई। फरमाने लगे, बाज़ों का तो अल्लाह चाहे तो मकड़ी के जाले तन के अपनी मदद के रास्ते दिखा दे, और अल्लाह चाहे फाख्ता को कहे जहां अंडे दे दे, अल्लाह मदद दिखा दे। ये अल्लाह की मदद के अंदाज हैं। करता कौन है? अल्लाह। मुर्शिद ने वो पानी का लिया और जोर से मारा और एक बात फरमाई, क्या तू ये नहीं कहता कि मैं रब को बगैर दलील के मानता हूं? दलीलों पे दलीलें दे रहा, लॉजिक पे लॉजिक दे रहा, जस्टिफिकेशन है। तू कहे कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूं। और मुंह पे आके वजू का पानी लगा और कान में आवाज आई कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के एकदम फरमाया, जा मरदूद, मैं तो अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूं। और यही रूह निकल गई और खात्मा बिल खैर हो गया। जो शख्स अजान के जवाब में, अब इस वाक्य से मेरी बात समझ आ रही है? इस वाक्य से कितने लोग ऐसे वाकयात हैं वो कहते हैं हमारी जुबान से कलमा जारी नहीं होता। एक दरवेश थे, दरवेश हमारी लाहौर के थे, 1998 में फौत हुए। असर की नमाज के सजदे की हालत में नजा की कैफियत शुरू हुई। उनके शागिर्द कहते हैं जब उठा के ले जा रहे थे अस्पताल की तरफ, दिल का दौरा पड़ा था, बार बार फरमा रहे थे कलमा पढ़ के मेरे मुंह में फूंक मारो, इस मुंह से कलमा निकले, कलमा पढ़ के मेरे मुंह में फूंक मारो। और मैं 98 में उनकी कब्र पे गया तो कब्र में मुश्क की खुशबू थी। 98 में 98 में कब्र में खुशबू थी। मेरे एक साहब मेरे साथ थे, उन्होंने मिट्टी उठा के खा ली खुद। मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से 6 माह खुशबू आती रही, अब भी वहां जाके बैठे खुशबू आती है। 6 माह तक खुशबू आती रही। फिर लोगों ने मिट्टी उठाई, फिर मिट्टी उठाई, गड्ढे कर दिए। आखिर कुछ मशाइख, दरवेश, बुजुर्ग आए, उन्होंने खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह इसको खत्म कर दे, इससे मखलूक में फितना पैदा हो रहा। आखिरकार खत्म हो गई। 6 माह तक मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे खुशबू आती रही। अब भी वहां जाके बैठा रहता हूं, अजीब झोंका सा आता है, दाएं बाएं देखे कोई फूल ही नहीं होता, खुशबू निकलती है। जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ेगा, पहला फायदा मैंने क्या बताया इसका? अल्लाह नस्लों से सजदे नहीं छीनेगा। और दूसरा फायदा बताया कि आखिरी वक्त में जब बेबसी बेकसी की कैफियत होती है, चाहे वो मौत जिस अंदाज की आए कोई पता नहीं होता, कोई खबर नहीं होती, बंदा एकदम सुन्न और साकित हो जाता है, बेबस हो जाता है। उस वक्त एक ताकत है, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैहि, वो एक ताकत अल्लाह जल्ल शानहू की है कि बस वो कलमा नसीब हो जाए और खात्मा ईमान पे हो जाए, वरना ना कुछ नहीं होगा। तो जो शख्स अजान के जवाब में ये पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसका खात्मा बिल खैर करेगा। वो जैसे भी मरे, जैसे मौत मेरे रब ने जहां भी लिखी है, उसका खात्मा ईमान पे होगा। और याद रखिएगा, सारी जिंदगी की मेहनत का आखिर अंजाम ये खात्मा बिल खैर है। अल्लाह मेरा भी कर दे, आपका भी कर दे, और हमेशा हमेशा के लिए कर दे। जिस तरह हम यहां इकट्ठे हैं ना, अल्लाह ऐसे जन्नत में भी इकट्ठा कर दे। और तीसरा फायदा इसका सुने, किसका? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तीसरा और आखिरी फायदा इसका अजीब व गरीब है। जो शख्स ये पढ़ता है, इसकी मैं दलील के तौर पे एक बात अर्ज करता हूं। एक सहाबी हैं, उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा मेरा घोड़ा सरकश हो गया है, वो लगाम ही नहीं डालने देता, वो मुझे मारता है, काटता है, दौड़ता है। उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं,
उसके कान में जाके अजान पढ़ के फूंक मार दे, घोड़ा ठीक हो जाएगा। अजान पढ़ी, कान में जाके फूंक मार दी, घोड़ा ठीक हो गया। एक हदीस में आता है, मफहूम है, जब अजान होती है शैतान इसको सुन के वहां तक दौड़ता है, इतना दूर जहां तक इसकी आवाज जाती है, और इतना अजान से खौफता होता है कि उसकी हवा खारिज होती है बड़े जोर से, इतना खौफजदा होता है अजान से। और जो अजान का जवाब देते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अजीम पढ़ेगा, नजर बद, जादुई अमल, शैतानी अमल, सिफली अमल, बंदिश का अमल उस पर असर नहीं करेगा। ये मैंने बारहा आजमाया, बारहा आजमाया, बारहा आजमाया, और ये मैंने किसी किताब में भी नहीं पढ़ा। अल्लाह का निजाम है अजीब व गरीब। बाज़ औक़ात में नींद मेरी खुलती है तो नींद खुलते ही कोई लफ्ज मेरी नींद पे बेसाख्ता आ जाते हैं। ये मेरे मौलाना बैठे, मेरे बाज़ औक़ात फौरन पूछता हूं ये लफ्ज कहां है, ये लफ्ज किस जगह लिखा हुआ है, इसका लहजा कैसे है, इसके अल्फाज कैसे हैं। इनसे फिर मैं सही कराता हूं, अपने लफ्ज सही कराता हूं। बेसाख्ता कोई चीज अल्लाह ताला फरमा देता है अपने इल्म में से इल्म। जो शख्स ये पढ़ता है अजान के जवाब में, अच्छा इस अजान के जवाब के लिए बावजू होना शर्त नहीं, पाकी नापाकी कोई शर्त नहीं, सवारी बैठना उठना शर्त नहीं। जो शख्स ये अजान के जवाब में एक दफा कह ले, दो दफा कह ले, चार दफा, जितनी दफा कह ले, अल्लाह पाक जल्ल शानो का निजाम देखें, इसकी बरकत से अल्लाह पाक उसको जादू से, शैतानी हमले, अच्छा नजर बद भी शैतान के एक हमले का अंदाज है, जादू भी शैतान के एक हमले का अंदाज है, सुफली अमल भी शैतान के एक हमले का अंदाज है, हांडी का अमल भी एक शैतान के हमले का अंदाज है, मुट्ठी भेजना, ये मेरी तरह मुट्ठी देखो, एक अमल है ताकतवर, किसी को जान से मारने का मुट्ठी भेजना, ये भी शैतान के अमल का एक अंदाज है। शैतान के जितने भी अमल हैं वो जादू की शक्ल में, सिफली अमल की शक्ल में, नजर बद की शक्ल में, खुद शैतान यानी जिन्नात की शक्ल में, जितनी भी हैं, इन सब का तोड़ इस अजान के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अजीम पढ़ना है। इतना मुअस्सर तरीन, ताकतवर तरीन ये अमल है, और ये ताकतवर तरीन ये इसके अंदर अल्लाह पाक ने जान रखी है। अब अजान की आवाज कानों में पड़ जाती है, काम भी अगर कर रहे तो जब हय्या अलस्सलाह आए और हय्या अलल फलाह आए तो एक बार, दो बार, चंद बार, जितने भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना कौन सा मुश्किल है। अब नफे कितने ज्यादा, पहला नफा यह है कि अल्लाह इसकी नस्लों से सजदे नहीं छीनेगा, याद रखिएगा। पहला नफा यह है अल्लाह इसकी नस्लों से, मैं पूछूंगा फिर। और दूसरा नफा क्या है, खात्मा बिल खैर होगा, अल्लाह इससे दूसरे लफ्जों में कलमा नहीं छीनेगा। और तीसरा जब पढ़ेगा तो अल्लाह इससे आफियत नहीं छीनेगा। क्या नहीं छीनेगा, जब आफियत छीन जाती है फिर नजर बद भी, फिर जादू भी, फिर हमले भी, फिर शैतानी रोग भी, फिर शैतानी वसवसे भी, और शैतान के फिर जाल भी, हिबालत शैतान, शैतान के जाल। कितना मुख्तसर अमल है, क्या ख्याल है, करेंगे?